امسال کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی جس میں اس کی کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بہت بے دلی سے اپنے ماما کے ساتھ بازار جاتی تھی اور وہاں بھی بس خاموش ہی رہتی تھی۔ زباریہ بیگم کو اپنے ہر وقت چہکتی ہوئی بیٹی کی خاموشی تکلیف دیتی تھی۔ ان کو اس بات کا بہت ملال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ امسال جس چیز کے لیے سب سے زیادہ پریشان تھی وہ تھا ارحان کو سب کچھ بتانا۔ اس میں ہمت ہی نہ تھی ارحان کا سامنا کرنے کی، اسی لیے وہ اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ کیسی ہو المیر؟ فون بجنے پہ جب المیر نے فون اٹھایا تو ارحان کی کال آ رہی تھی۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ ارحان کی کال اس کو موصول ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ سب خیر ہے؟ المیر نے جواب دیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تمہاری امسال سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ میری کال ہی نہیں اٹھا رہی، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اس کے لیے۔ میں فی الحال کراچی میں نہیں ہوں ورنہ خود ہی اس کے گھر چلا جاتا۔ ارحان کا لہجہ اداس اور پریشان کن تھا۔ ہاں میری پرسوں بات ہوئی تھی اس سے، وہ کہہ رہی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے کسی سے بات نہیں کر پا رہی۔ تم فکر مند نہ ہو، المیر نے ارحان کو تسلی دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ، میں آتا ہوں کراچی واپس۔ ارحان نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی تھی جبکہ المیر بس فون کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کاش ارحان تم میرے لیے بھی ایسے ہی فکر مند ہوتے۔ لوگ سچ کہتے ہیں یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے۔ المیر اپنے فون پہ ارحان کی تصویر دیکھتے ہوئے خود سے مخاطب تھی اور کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو کسی اور کے لیے فکر مند ہوتے دیکھنا، لیکن المیر یہ سب کتنے سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ روز جیتی تھی اور روز ہی مرتی تھی۔ یک طرفہ محبت بہت جان لیوا ہوتی ہے، اس میں صرف ایک ہی فرد کو تمام قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ المیر بھی تو قربانی دے رہی تھی، اپنی محبت کی قربانی۔ ارحان کسی کام کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اسے المیر کے ذریعے امطال کی خراب طبیعت کا پتہ چلا تھا تب سے وہ بہت بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا کام جلد سے جلد ختم کیا تھا اور اگلی فلائٹ سے واپس کراچی آ رہا تھا۔ اسے اب بس امسال سے ملنا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، صبح کے 9 بج رہے تھے جب امسال کا فون چیخنا شروع ہو گیا تھا۔ امسال نیند کی بہت پکی تھی لیکن مسلسل فون بجنے سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ ہیلو! امسال کی نیند میں ڈوبی آواز دوسری جانب سنائی دی تھی۔ اس نے بغیر دیکھے ہی کال اٹھائی تھی۔ ہیلو امسال! ارحان بے چینی سے بولا تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ امسال اب بھی نیند میں ہی تھی۔ امسال میں ارحان بات کر رہا ہوں۔ ارحان سمجھ گیا تھا کہ امسال نیند میں ہے اسی لیے ایسے الٹے جواب دے رہی ہے۔ او ارحان کیسے ہو؟ ارحان کا نام سنتے ہی امسال کا دماغ جاگا تھا اور نیند تو بھگ سے اڑ گئی تھی۔ امسال اٹھ کے بیٹھی تھی اور کچھ دیر تو بولنے کے قابل نہ رہی تھی لیکن پھر ہمت کر کے گویا ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ، المیر سے پتہ چلا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، کیسی ہو اب؟ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو ہاں؟ اور میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ جانتی بھی ہو میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ ارحان ایک سانس میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں ارحان، امسال بس اتنا ہی جواب دے پائی تھی۔ ارحان کے لہجے میں اپنے لیے فکر محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ تھینک گاڈ، مجھے ملنا ہے تم سے، لنچ ساتھ کرتے ہیں، میں تمہیں 2 بجے لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ کہہ کر ارحان نے فون بند کر دیا تھا جبکہ امسال کوئی مزاحمت نہ کر پائی تھی۔ تو امسال آج وہ دن آ گیا ہے جب تم اپنے سب سے اچھے دوست کی نظروں میں گر جاؤ گی۔ میر ابتہاج تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی کہ تم خود مجھے چھوڑ دو گے۔ امسال نے نفرت بھرے لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ بھیگے جا رہی تھی۔ امسال کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہونے والا تھا لیکن اس نے خود کو تیار کر لیا تھا ارحان سے سامنا کرنے کے لیے۔ آج وہ ارحان کو تمام سچائی سے آگاہ کرنے والی تھی، آج وہ کسی کے خواب توڑنے والی تھی۔ خواب تو اس کے بھی ٹوٹ گئے تھے، اسے فینٹیسیز پسند تھی لیکن وہ ان میں جیتی نہیں تھی، وہ حقیقت پسند تھی لیکن اس کی زندگی اس وقت شاید کوئی فینٹیسی ہی بن گئی تھی۔ 1:45 بج رہے تھے جب امسال کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ زباریہ بیگم کی اس پہ نظر پڑی تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ ماما ارحان لینے آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، اسے سب کچھ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ دعا کرے ماما کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ امسال کے لہجے میں ہمیشہ جیسی مضبوطی اور اعتماد نہیں تھا۔ کچھ دیر میں ارحان آ گیا تھا اور امسال زباریہ بیگم سے مل کر چلی گئی تھی۔ زباریہ بیگم پیچھے آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ امسال اور ارحان اس وقت ایک ریستوران میں بیٹھے ہوئے تھے۔
अमसाल मामूल से बहुत ज्यादा खामोश थी। अरहान की बातों का जवाब बस हूँ हाँ में दे रही थी। अमसाल क्या हो गया है यार, परेशान हो? इतना अजीब और अजनबी अंदाज क्यों है आज तुम्हारा? अरहान से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए पूछ बैठा। हाँ बस बहुत परेशान हूँ मैं अरहान। अमसाल ने भी बोलने का फैसला कर लिया था। हाँ तो क्यों परेशान हो, क्या हुआ है, शेयर करो मुझसे। अरहान बिल्कुल संजीदा हो गया था। अरहान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद अमसाल ने बात का आगाज किया था। हाँ तो कहो ना, तुम कब से तमीज बांधना शुरू हो गई? सीरियसली अमसाल, आज तुम मुझे अमसाल की शक्ल में कोई और लग रही हो। अरहान सैंडविच खाते हुए बोला था। देखो अरहान, अब मैं जो कहने वाली हूँ उस बात को बहुत तामुल से सुनना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम नहीं सुन पाओगे और ना बोल पा रही हो। मैं अमसाल कुछ भी बोलने की हिम्मत ना जमा कर पा रही थी। अब तुम मुझे डरा ही रही हो यार, बोल दो ना, वरना टेंशन से मेरा बीपी शूट हो जाएगा और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। अरहान से मजीद बर्दाश्त ना हो रहा था अमसाल का ऐसे तमहीद पे तमहीद बांधना। अरहान, हमारी शादी नहीं हो सकती। अमसाल ने गहरी सांस खींची थी और आंखें बंद किए अपनी बात बोल चुकी थी। क्या? फिर से कहना। अरहान को यकीन था कि उसे सुनने में गलती हुई है। ठीक सुना है तुमने अरहान, हमारी शादी नहीं हो सकती अब। अमसाल ने अपनी बात दोहराई। क्या मतलब, क्यों? मुझसे ऐसे फालतू मजाक मत करो अमसाल। अरहान के लहजे में गुस्सा शामिल हो गया था। अमसाल ने अरहान को शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बता दी थी और इस दौरान ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भीगी थी। अरहान सब कुछ सुनने के बाद सन्नाटे में आ गया था और कुछ भी बोलने के काबिल ना रहा था। कुछ वक्त गुजरा था, दोनों के दरमियान खामोशी थी। फिर अरहान ने बिल पे किया था और अपनी जगह से उठा था। साथ ही अमसाल का हाथ पकड़ के रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया था। अब दोनों गाड़ी में मौजूद थे। तुम एक बार मुझे सब बताती तो अमसाल, क्या बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? अरहान का लहजा ऐसा था जैसे कोई हरा हुआ जवारी। ऐसी बात नहीं है अरहान, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, वो बहुत खतरनाक है। अमसाल ने वजाहत दी। तुम इस वक्त कौन सा, तुम मुझे जिंदगी की नवीद सुना रही हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, समझ आ रहा है तुम्हें? मैं नहीं होने दूंगा तुम्हें किसी और का। अरहान पूरी ताकत से चिल्लाया था। अमसाल कोई बेजान चीज नहीं थी, बल्कि जीती जागती इंसान थी जिसको हासिल करने के लिए दो मर्द पागल हो रहे थे। कोई अमसाल से पूछता कि वो क्या चाहती है। अरहान के चिल्लाने से अमसाल सहम गई थी, क्योंकि इसने 4 सालों में कभी भी अरहान का ये रूप नहीं देखा था। अमसाल के सहमने पर अरहान ने खुद को काबू करना चाहा था और सारा गुस्सा अपना हाथ स्टेयरिंग पे मार के निकालना चाहा था, लेकिन इसके बावजूद भी गुस्सा कम ना हो रहा था। अरहान, शादी है मेरी अगले महीने, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। तुम सबकी जिंदगी और खुशियों के लिए ही कुर्बानी दे रही हूँ। अमसाल रोते हुए बोली थी। कोई शादी वादी नहीं होगी तुम्हारी उससे, मैं देख लूंगा उसको। तुमने मुझे इतना कमजोर समझा हुआ है कि मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊंगा? हरगिज भी नहीं। अरहान किसी सूरत मानने को तैयार न था और मानता भी क्यों। अमसाल के पास तो बोलने को कुछ बचा ही न था। वो तो पहले ही खुद को अरहान का मुजरिम समझ रही थी। अरहान, तुम अपने माँ बाप के अकलौते बेटे हो, उनका सोचो प्लीज। मैं आजकल की लड़की हूँ जिसे तुम्हारी जिंदगी में आए चंद साल ही हुए हैं। अपने वालिदैन की मोहब्बत पे तुम्हारे दिल में मौजूद मेरी मोहब्बत को गालिब मत करो। मैं जानती हूँ मीर इब्तिहाज को वो कुछ भी कर सकता है। अब तक उसने जो कुछ किया है, कहा है। अमसाल काफी देर बाद बोली थी। मैं अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ अमसाल, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी जगह भी कोई नहीं ले सकता। ये अलग बात है कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, इसलिए ये सब कुछ कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, लेकिन तुमसे दस्तबरदार होना मेरे लिए मौत के बराबर है। अरहान ने आज गुस्से में वो बात बोल दी थी जो काफी अरसे से उसके दिल में चुभती थी। हाँ, मैंने मोहब्बत नहीं की तुमसे अरहान, नहीं की मैंने तुमसे वैसी मोहब्बत जैसी तुम मुझसे करते हो, क्योंकि मैं अपने महरम से मोहब्बत में कोई खोट नहीं करना चाहती, इसलिए अपने दिल को कभी उसकी हदूद तोड़ने नहीं दी। अमसाल से अरहान का ताना बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो तुम मुझसे मोहब्बत कर लोगी अमसाल? अरहान के लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि उसकी बात सुनकर अमसाल शर्मसार रह गई थी। पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। अमसाल के चेहरे पे सख्ती आ गई थी। दिल के टूटने की तकलीफ क्या होती है ये तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने कभी किसी से दिल लगाया ही नहीं। जब दिल टूटता है ना, तो उसका दर्द आपकी रूह को जलाकर राख कर देता है।
अरहान के लहजे और आंखों से उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। अरहान ने गाड़ी स्टार्ट की थी और जितनी तेजी से ड्राइव कर सकता था कर रहा था। कुछ ही देर में अमसाल को वापस छोड़ के बगैर कुछ कहे अरहान चला गया था। अमसाल भी उसे कुछ वक्त देना चाहती थी क्योंकि ये सब कुछ तस्लीम करना आसान बात न थी। इब्तिहाज के वफादारों ने उसे ये खबर दे दी थी कि अमसाल अरहान के साथ कहीं गई है। ये बात सुनते ही इब्तिहाज ने गुस्से से जबड़ा बींचा था। ऐसा न था कि उसे अमसाल पे भरोसा नहीं था। इब्तिहाज के गुस्से की वजह अमसाल का उसकी बात ना मानना था। अमसाल जिद में आके हर वो काम करती थी जिससे इब्तिहाज ने उसे मना किया था। अमसाल ने घर आकर अपनी मामा को सारी सूरत हाल बता दी थी और फिर अपने कमरे में आ गई थी। उसे कुछ वक्त चाहिए था खुद को बहलाने के लिए। अमसाल वॉशरूम से बाहर आई तो उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था, लेकिन वो उठाने की जहमत ना कर रही थी और शीशे के सामने खड़े होकर अपने गीले बाल सुलझा रही थी। काफी देर बाद जब फोन करने वाला बाज ना आया तो अमसाल ने गुस्से से फोन उठाकर कान से लगाया। क्या मुसीबत है आपको? जब कोई फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है वो बात नहीं करना चाहता। अमसाल की चिंगाती हुई आवाज इब्तिहाज के कानों ने सुनी थी। तुम प्यार से बात नहीं कर सकती, हर वक्त चीखती ही रहती हो। इब्तिहाज ने अमसाल पे चोट की थी। करती हूँ प्यार से बात, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जिनसे प्यार करती हूँ। जिनसे नफरत करती हूँ उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती हूँ मैं। अमसाल ने शाने बेनियाजी से कहा था। उफ, आपकी ये अदाएं, मासूम बंदा कहाँ जाए? इब्तिहाज ने आह भरी थी। क्यों फोन किया है? अमसाल बेजारी से बोली थी। तुम उस चूजे से क्यों मिली हो? इब्तिहाज संजीदा हो गया था और लहजे में सख्ती आ गई थी। हैं? कौन चूजा? अमसाल को इब्तिहाज की बात समझ न आई थी। वही अरहान। इब्तिहाज दांत पीसते हुए बोला था। हाँ, मिली हूँ तो, और वो कोई चूजा नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम बंदा है। अमसाल ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। मेरे सामने चूजे से ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है। क्यों मिली हो तुम इससे? मेरी एक बार की कही बात तुम्हें समझ नहीं आती? हर बार करके दिखाना पड़ेगा? इब्तिहाज घुर्राया था। क्या चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, अब मैं अपने दोस्तों से भी मिल नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं? सांस भी आपकी मर्जी से लिया करूं मैं? इतनी पाबंदियां मेरे माँ बाप ने कभी नहीं लगाई मुझ पे जितनी आप लगा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मेरे सामने उनकी कोई अहमियत नहीं है। अमसाल तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी, मौका मिलते ही फट पड़ी। तुम ऐसा नहीं सुधरोगे। ठीक है, ठिकाने लगवाता हूँ मैं तुम्हारे आशिक को कहीं। इब्तिहाज की बर्दाश्त बस इतनी ही थी और वो था अभी गुस्से का तेज। मीर इब्तिहाज, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप जो चाहते हैं मैं कर रही हूँ। हमेशा की तरह वो इब्तिहाज की धमकी से डरी थी। जब मैंने मना किया हुआ है तो क्यों मिली हो तुम मुझसे? इब्तिहाज का गुस्सा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। बताने के लिए मिली थी कि शादी नहीं कर सकती मैं उससे। आज खुद को उसकी नजरों में गिरा कर आ रही हूँ। यही चाहते थे ना आप? अमसाल ने कहकर कॉल काट दी थी और साथ ही फोन भी पावर ऑफ कर दिया था। ये चटाक भर की लड़की मुझ पे चिल्ला रही है। इब्तिहाज ने गुस्से में अपना फोन दीवार पे दे मारा था, जो कि दो टुकड़ों में बट गया था। साथ ही इब्तिहाज की आवाज कमरे में गूंजी थी। अरहान ने घर पहुंचकर अपना सारा गुस्सा चीजों पे निकाला था और कुछ ही देर में कमरे की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वहां कोई तूफान आकर गुजरा हो। काफी देर चीजों की तोड़ फोड़ के बाद अरहान के होश बहाल हुए थे और सबसे पहला ख्याल उसे अमसाल का ही आया था। वो गुस्से में न जाने क्या क्या बोल गया था और अब अमसाल को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अमसाल, तुम क्यों नहीं समझती ये बात? मैं तुम्हें जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, अरहान खुद से कहते हुए रो दिया था। ये सच था कि अरहान ने अमसाल से सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन हर बार वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। अरहान ने जोश से नहीं होश से काम लेने का फैसला किया था, क्योंकि उसे इब्तिहाज का मुकाबला करना था और ये होश और हवास में रहकर ही मुमकिन था। अरहान का दिमाग तेजी से चल रहा था और फिर बिलाखिर कुछ वक्त सोचने के बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई थी, लेकिन उस पे अमल करने के लिए उसे सबका साथ चाहिए था। अरहान फ्रेश होकर अब अशमील और रेहान की तरफ जाने वाला था। अरहान ने अशमील और रेहान को तमाम हकीकत बता दी थी और साथ ही अपना बनाया हुआ मंसूबा भी। दोनों अपने भाई जैसे दोस्त की मदद करने को तैयार थे। अशमील ने माहा, जो कि अब उसकी मनकूहा थी, को सब बताया था सिवाय अरहान के प्लान के। माहा और अलमीर दोनों आज अमसाल से मिलने जाने वाली थी। उनकी दोस्त पे मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे और दोनों कितनी बेखबर थी। 4 बजे का वक्त था जब माहा और अलमीर ड्राइंग रूम में बैठे अमसाल का इंतजार कर रही थी। अमसाल दोनों से मिली थी और फिर उन्हें साथ लिए अपने कमरे में आ गई थी। इतना सब कुछ हो गया अमसाल, और तुमने हमें बताना भी गवारा न किया, क्यों?
अगर अर्शमुल मुझे ना बताते तो हम बेखबर ही रहते। माँ बोली थी, लहजे में शिकवा था। क्या बताती यार, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी किसी को। अमसाल ने फीकी मुस्कुराहट लबों पे सजाते हुए कहा था। आज उसकी मुस्कुराहट में भी गम शामिल था। क्या हो गई हो तुम यार, ऐसी तो नहीं थी। हमें बताती तो एक बार। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि कैसी दोस्त हूँ मैं जिसे तुम्हारी तकलीफ समझ ना आई। अलमीर अमसाल को ऐसे देख वो दुखी हो गई थी। बस यार, वक्त ने क्या ये हंसी सितम। अमसाल ने अपनी बात को मजाक का रंग देना चाहा था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी नुमाया थी। अलमीर और माहा दोनों ही खामोश थी। दोनों के पास ऐसे अल्फाज ही ना थे कि वो अमसाल को तसल्ली देती। छोड़ो यार ये बातें, मुझे डिस्कस नहीं करना ये मौजू। मैं किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर चुकी हूँ हालात को। मुझे यकीन है इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। तुम दोनों बताओ, आओगी ना मेरी शादी में? अमसाल ने अपना मूड तब्दील किया था। वो खुद भी तंग आ गई थी रोज रोज के रोने से। ये कोई पूछने वाली बात है, बिन बुलाए भी आ जाएंगे हम लोग तो। माँ भी अपनी मस्ती वाले मूड में आई थी। इसी तरह उन तीनों ने हंसी मजाक किया था और कुछ देर के लिए अमसाल अपनी तमाम तकालीफ भूल गई थी। अरहान हमदान साहब से मिलने उनके ऑफिस आया था क्योंकि वो उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। अंकल, आपको मेरा साथ देना होगा अमसाल के लिए, प्लीज। अरहान ने हमदान साहब को अपना मंसूबा बताया था, जिसके बाद वो सोच में पड़ गए थे। अंकल, अगर आप अमसाल को उस शख्स से बचाना चाहते हैं तो हमें ये कदम खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरहान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि हमदान साहब मान जाए। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अमसाल और जुबारिया से बात करूंगा घर जाकर। हमदान साहब कुछ देर सोचने के बाद बोले थे। उनके पास भी कोई और तरकीब ना थी अपनी बेटी को बचाने के लिए। नहीं अंकल, आप अमसाल को कुछ ना बताएं। मैं खुद उसे बताऊंगा भी और लेकर भी आऊंगा। बस परसों आप आंटी को लेकर आ जाइएगा। अरहान के कहने पर हमदान साहब मान गए थे। अरहान क्या करने वाला था अमसाल उससे बेखबर थी, लेकिन बहुत जल्द ही उसे खबर होने वाली थी और शायद उसकी जिंदगी की दहलीज पर एक और तूफान तैयार खड़ा था। इत्तेहाज आजकल अपनी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में बहुत मसरूफ था। बिजनेस के मामले में भी वो काफी हद तक जुनूनी था। जो प्रोजेक्ट उसे चाहिए होता था वो उस पे अपनी सर तोड़ मेहनत करता और उस प्रोजेक्ट को हासिल कर लेता था। इंटरनेशनल डेलीगेशन एक बहुत बड़ा टेंडर लेकर इस वक्त इस्लामाबाद मौजूद थी और इस टेंडर को हासिल करने के लिए वो कंपनियां अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। ये दो कंपनियां जहांगीर इंटरप्राइजेस और दुरानी ग्रुप थी। दुरानी ग्रुप जहांगीर इंटरप्राइजेस की टक्कर का ना था और ना ही वो कोई बड़ी कंपनी थी, लेकिन इस टेंडर को हासिल करने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। अगर दुरानी ग्रुप को ये टेंडर मिल जाए तो उसका शुमार नामवर कंपनियों में हो सकता है। दुरानी ग्रुप के मुखालिफ जहांगीर इंटरप्राइजेस का होना कोई खास अच्छी बात न थी, क्योंकि जहांगीर इंटरप्राइजेस मुल्क की मशहूर कंपनी थी और अपने प्रोजेक्ट्स के मामले में इनका रिकॉर्ड बहुत ताकतवर था। इस टेंडर को हासिल करने के लिए इत्तेहाद और उसकी टीम सरगर्म थी और अब एक आखिरी मीटिंग होना बाकी थी, जिसके बाद ये मालूम होना था कि टेंडर आखिर किसको मिलेगा। मीटिंग इस्लामाबाद में रखी गई थी और इत्तेहाद भी अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद में मौजूद था, लेकिन इत्तेहाद को ये अंदाजा ना था कि उसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। जोहर के बाद का वक्त था। अमसाल घर पे अकेली थी। अमसाल अपना असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी जब घर की बेल बजी थी। दरवाजा खोला तो सामने अरहान खड़ा था। अमसाल ने उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया था और पानी पिलाया था। अमसाल, मुझे माफ कर दो प्लीज। उस दिन मैंने गुस्से में न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस सब के लिए। अरहान के लहजे में नदामत थी। अरहान, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा और ज्यादा बुरा रवैया सोच कर बैठी थी। अमसाल ने अरहान की नदामत को दूर करना चाहा। खैरियत, तुम यहाँ कैसे आए? मामा भी घर पे नहीं है इस वक्त। अमसाल ने अरहान से उसके आने की वजह मालूम करना जरूरी समझा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। अरहान खड़े होते हुए बोला था। कहाँ जाना है? अमसाल ने पूछा। बस जाना है, एक जगह पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा। अब चलो। अरहान ने अमसाल का हाथ पकड़ा था। अरहान, मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ कहीं भी। मामा भी नहीं है यहाँ। अमसाल ने अरहान से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था। आंटी से मैं बात कर चुका हूँ, तुम फिलहाल चलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरहान ने अमसाल का हाथ दोबारा अपनी गिरफ्त में लिया था और उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ा था। ये क्या बदतमीजी अरहान, छोड़ो मुझे, मेरी चादर तो लेने दो। अमसाल को अरहान का ये रवैया कुछ समझ ना आ रहा था। जल्दी लो, हमारे पास वक्त नहीं है अमसाल। अरहान उजलत में था। सब खैरियत तो है ना अरहान? अमसाल को अब परेशानी हो रही थी। बस दुआ करो सब कुछ खैरियत से हो जाए।
अरहान अमसाल को लिए निकल गया था, जबकि वो अरहान की बातों से परेशान हो गई थी और अपना फोन भी घर पे ही भूल गई थी। अमसाल के बेटे ही अरहान ने अपनी गाड़ी आगे भगा ली थी। दोनों ही किसी की मौजूदगी को फरामोश कर गए थे और ये अरहान को महंगा पड़ने वाला था। मीटिंग कामयाब रही थी और टेंडर सबकी उम्मीदों के मुताबिक जहांगीर एंटरप्राइजेस को ही मिला था। इत्तेहाद की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब वो जल्द से जल्द वापस कराची पहुंचना चाहता था और कुछ ही घंटों बाद उसकी फ्लाइट थी। अरहान अमसाल को लिए अपने घर पहुंच गया था। अमसाल को हैरत का झटका लगा था, क्योंकि अरहान के घर में अमसाल के घर वाले और दोस्त मौजूद थे। अरहान के वालिद वकास दुरानी इस्लामाबाद में थे और जल्द ही कराची पहुंचने वाले थे। अमसाल अपने घर वालों की अरहान के घर में मौजूदगी को समझ न पाई थी और ना ही उसे ये समझ आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। अरहान की वालिदा ने अमसाल को प्यार किया और बहुत मोहब्बत से उसके सर पे लाल नेट का दुपट्टा उड़ाया था। फिर अलमीर और माहा की हमराही में उसे एक कमरे में भेज दिया गया। अरहान और अमसाल का निकाह हो रहा था। ये खबर अमसाल के सर पे किसी बम की तरह फटी थी। अमसाल की आंखों के सामने इत्तेहाद की शक्ल और कानों में उसकी धमकियां गूंज रही थी। अरहान, अशमील और रेहान ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। काजी साहब भी मौजूद थे। अरहान के वालिद के पहुंचते ही निकाह शुरू होना था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसे अरहान ने सोचा था। वो खुश था, क्योंकि कुछ ही देर में वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने वाला था। लेकिन होता वही है जो उस रब की रजा होती है, और शायद उसकी रजा कुछ और ही थी। जब अरहान अमसाल को अपने साथ लिए जा रहा था, उसके पीछे इफ्तिहाज के मुलाजिम थे और वो सारी बात जान चुके थे। इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवाज जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी और इफ्तिहाज अपनी टीम के साथ प्लेन से निकलकर एयर ट्यूब से गुजर रहा था। इफ्तिहाज ने बोर्डिंग गेट से निकलकर एयरपोर्ट पर कदम रखा ही था कि उसका फोन बजना शुरू हो गया था। अमसाल के घर के बाहर खड़े गार्ड्स में से एक की कॉल थी। इफ्तिहाज ने फौरन से फोन कान से लगाया था। जो खबर इफ्तिहाज को मिली थी उसे सुनकर इफ्तिहाज के पैरों तले जमीन निकल गई थी। गुस्सा था कि आसमान छू रहा था। कुछ पल के लिए इफ्तिहाज सोचने समझने बोलने यहाँ तक के हिलने के भी काबिल ना रहा था। मेरी बात गौर से सुनो, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए या तूफान, ये निकाह किसी सूरत नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो, किसी भी तरह रोको। ऐसा होने से मैं पहुंच रहा हूँ। और हाँ, बाबा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये निकाह हो गया तो तुम सबकी जान ले लूंगा मैं, समझे। इफ्तिहाज फोन पे ही धरा था और अपना हुक्म जारी किया था। इफ्तिहाज की बात सुनकर उसके मुलाजिम अपने काम में लग गए थे, क्योंकि बहरहाल उन्हें अपनी जान प्यारी थी और गलती की सूरत में क्या होता ये भी वो अच्छे से जानते थे। इफ्तिहाज जो कुछ देर पहले बहुत खुश था, अब वो खुशी कहीं गायब हो गई थी। चेहरे और अंदाज में सिर्फ एक ही तासुर था और वो था गुस्सा। इफ्तिहाज को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अमसाल को खो देगा। इफ्तिहाज के दिल से इस वक्त सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी और वो थी अमसाल की हमराही। अमसाल को खोने का एहसास ही उसकी जान ले रहा था। उसकी सुनहरी शहद जैसी आंखों में हल्की नमी आई थी। अब बस किसी भी तरह इफ्तिहाज को उस जगह पहुंचना था जहां उसकी बर्बादी की तैयारियां हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है और ये आंटी क्या बोल रही थी? अमसाल सदमे से बोली थी। निकाह हो रहा है तुम्हारा, और क्या? महा बड़े मजे से बोली थी। ये कैसे हो सकता है? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? अमसाल को यकीन ना आ रहा था। अरहान ने मना किया था यार, उसी का मंसूबा है ये। माहा ने जवाब दिया। माहा ही तमाम बातों का जवाब दे रही थी, जबकि अलमीर बिल्कुल खामोश थी। आज उसे अपनी दुनिया लुटती महसूस हो रही थी। अलमीर की आंखों में मौजूद उदासी और मुरझाया हुआ चेहरा अमसाल से छुपा न था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो जानता नहीं है मीर इफ्तिहाज को। अगर उसे पता चल गया तो जान ले लेगा वो अरहान की। अमसाल के लहजे में परेशानी और डर था। अगर अब कोई भी होशियारी की तो तुम्हारा भाई और वो अरहान नामी चीज दोनों का मैं जो हाल करूंगा तुम याद रखोगी। अमसाल के दिमाग में इफ्तिहाज की कही गई ये बात घूम रही थी और उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। एक बार निकाह हो गया तो वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो, और तुम्हारी उससे जान भी छूट जाएगी। महा ने अपनी तरफ से पत्ते की बात की थी। तुम लोग नहीं जानते हो उसको। मैंने देखा है उसका जुनून भी और उसकी दीवानगी भी। वो अरहान को जान से मार देगा और फिर मुझसे शादी कर लेगा। अमसाल ठीक ही तो कह रही थी, शायद इफ्तिहाज ऐसा ही कर गुजरे। ना करो यार, सच में इतना पागल है वो तुम्हारे लिए। मेरे पीछे कोई ऐसा पागल होता तो कितनी तफरी आती। ओह, महा को थ्रिलर चीजें बहुत पसंद थी। उप्स, सॉरी। अमसाल की सख्ती से घूरती ने माहा के फराटे भरती जबान को ब्रेक लगाया था। कब तक ऐसे खामोश रहोगी अलमीर? अमसाल अब अलमीर से मुखातिब थी।
माहा साहिबा चुप होंगी तभी मुझे कुछ बोलने का मौका मिलेगा ना। अलमीर को अमसाल की बात का मफहूम समझ ना आया था, जबकि माहा ने अलमीर की बात के जवाब में उसे मुंह चिढ़ाया था। कब अपने लिए खड़ी होगी अलमीर? आखिर कब तक छुपा के रखोगी अपनी मोहब्बत को? अमसाल आज दो टोक बात करने के मूड में थी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अलमीर अमसाल की बात सुनकर घबरा ही तो गई थी। मेरा वही मतलब है जो तुम समझ रही हो। मैं बहुत अरसे से जानती हूँ कि तुम अरहान से बेहद मोहब्बत करती हो। अमसाल की बात सुनकर अलमीर ने गर्दन झुकाई थी, जबकि महा का मुंह हैरत के मारे खुल गया था। ये सब कब हुआ भाई, और मुझे क्यों नहीं पता? महा के पेट में मरोड़ उठने लगे थे। शायद यूनिवर्सिटी के पहले साल से पहले मुझे लगता था कि ये मेरा वहम है, लेकिन उसकी आंखें मुझे मजबूर करती थी ये सोचने पे कि ये मेरा वहम नहीं। फिर जब मेरी अरहान से मंगनी हुई, उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि ये बावड़ी अरहान से मोहब्बत करती है। मैं इंतजार ही करती रह गई कि अलमीर अब बोलेगी, लेकिन नहीं, ये मैडम तो अपनी मोहब्बत कुर्बान करने के इरादे रखती हैं। अमसाल ने अलमीर की अच्छी खासी क्लास ले डाली थी। माह को भी सारी बात समझ आ गई थी, जबकि अलमीर की आंखें बरसना शुरू हो गई थी। इतनी बहादुर हो तुम मीरू, के अपनी मोहब्बत को ही कुर्बान करने चली थी। अमसाल ने अलमीर को गले लगाया था और उसके आंसू साफ किए थे। वो अलमीर को प्यार से कभी कभी मीरू कहकर पुकारती थी। मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीनना चाहती थी, और अमसाल वैसे भी अरहान तुमसे मोहब्बत करता है। अलमीर ने रूहान से लहजे में बोली थी। बहुत ही कोई पागल लड़की हो तुम, कसम से। मुझसे एक बार कहती तो फिर मैं देखती कैसे नहीं करता वो तुमसे शादी। तुम जानती हो मैं अरहान से तो क्या किसी से भी मोहब्बत नहीं करती। उससे शादी मैं उसकी पसंद और अपने वालिदैन की खुशी के लिए कर रही थी कि बहरहाल मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी ही थी। अमसाल अरमीर को समझा रही थी। मैं डरती थी अमसाल कि अगर मैंने अरहान को बता दिया तो जो उससे दोस्ती है वो भी टूट जाएगी, और हम दोनों के दरमियान ये स्टेटस की दीवार भी तो है। अलमीर ने अपने दोबारा उमड़ आने वाले आंसू साफ करते हुए कहा था। स्टेटस तो मेरा भी अरहान के बराबर नहीं। मैं भी तो तुम्हारी तरह ही मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। अरहान ऐसा नहीं है अलमीर। खैर, जो होना था वो हो गया। तुम्हारी शादी अरहान से मैं खुद कराऊंगी इंशाल्लाह। अमसाल कुछ सोचते हुए बोली थी। तो फिर अभी क्या करने वाली हो तुम? वहां जो इतनी देर से खामोश सी बोल पड़ी। अगर ये मेरे इब्तिहाज का मसला दरमियान में भी ना होता, तब भी मैं शायद अरहान से शादी ना करती, क्योंकि मैं सब जानते हुए भी अपनी बहन जैसी दोस्त को बर्बाद नहीं कर सकती। अगर मीर इब्तिहाज ना होता तो यकीनन अरहान कभी भी अलमीर से शादी ना करता। लेकिन अलमीर की मोहब्बत और दुआओं में बहुत ताकत है। ये सब जो हो रहा है अल्लाह ने ऐसे ही तय किया है। मैं समझाऊंगी, अरहान को बहुत नाराज होगा वो, लेकिन उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों का निकाह किसी के हक में भी बेहतर नहीं। मैं खुद को बचाने के लिए बाकी सबकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। अमसाल ने अपने दिल की बात कही थी। लेकिन अमसाल, तुम्हारा क्या? तुम अपने आप को छोड़कर हम सबके बारे में सोच रही हो। तुम कैसे रहोगी उस शख्स के साथ? अलमीर के लहजे में अपनी इस अजीम दोस्त के लिए फिक्र थी। अलमीर ने अमसाल को हमेशा अपनी बहन ही समझा था। जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ये सब जो मैं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, ये सब अल्लाह के हुक्म से तो ही है। मीर इफ्तिहार जहांगीर, उसकी मोहब्बत में बहुत ताकत है, या फिर दुआओं में शिद्दत? अमसाल इस अफसरदा माहौल को खत्म करना चाहती थी और अपनी दोस्तों को अपनी जानिब से बेफिक्र भी। उसने जो कुछ भी कहा इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं था कि वह इब्तिहाज से मुतासिर हो गई है, या फिर उसके दिल में इब्तिहाज के लिए कोई नर्म गोशा पैदा हो गया है। मुझे सेंटी कर दिया जालिम तुमने। अल्लाह तुम जैसी दोस्त हर किसी को दे, आमीन। माह ने अमसाल को गले लगाया था। माह की आंखों में बहुत कम ही नमी आती थी, लेकिन आज वो भी रो दी थी। अलमीर, एक वादा चाहिए मुझे तुमसे, पूरा करोगी? अमसाल ने माह की पीठ थपकते हुए कहा था। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अलमीर ने नाराज होते हुए कहा। अरहान मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। मैं जानती हूँ कि आज के बाद वो टूट कर बिखर जाएगा, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम उसको बखेड़ा वजूद समेट लोगी। करोगी ना? अमसाल के लहजे में आस थी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अलमीर ने अमसाल का हाथ पकड़ते हुए कहा था। मुझे भरोसा है तुम पे। तुम्हारी मोहब्बत मिलते ही अरहान भूल जाएगा कि उसने कभी किसी और से मोहब्बत की थी। अमसाल ने बहुत मान से कहा था। अमसाल की बात पूरी होते ही दरवाजे पे दस्तक हुई थी। दरवाजा खुला तो सामने अरहान और अमसाल दोनों की वालदा खड़ी थी। वक्कास दुरानी पहुंच चुके थे और अब निकाह के लिए अमसाल को बुलाया गया था। अमसाल ने कुछ बोलना चाहा था, लेकिन उसकी बात सुने बगैर ही अरहान की मामों से बाहर ले आई थी। अमसाल के चेहरे पर लाल नेट के दुपट्टे से घूंघट किया गया था। बाहर आकर भी अमसाल ने अपने पापा से बात करना चाही, लेकिन वो वकास साहब के साथ किसी बात में मसरूफ थे और अमसाल को अरहान के बराबर कुछ फासले पर बिठा दिया गया था।
अमसाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे रोके। अमसाल अलमीर और माहा की जानिब देख रही थी, जिन्हें खुद कुछ समझ ना आ रहा था। जी काजी साहब, निकाह शुरू करें? वक्कास दुरानी बोले थे। अभी काजी साहब ने निकाह के कलमात शुरू किए ही थे कि बाहर से फायरिंग की आवाज आई थी और कोई घर का मेन दरवाजा खोल के खौफनाक तेवर लिए घर में दाखिल हुआ था। आने वाले को देखकर अमसाल और उसके घर वालों को सांप सूख गया था। या अल्लाह रहम, ये नहीं होना चाहिए था। अमसाल को अपने पास खतरे की घंटियां नहीं बल्कि बाजे सुनाई दे रहे थे। अमसाल बस इतना ही बोल पाई थी। इब्तिहाज जितनी तेजी से ड्राइव कर सकता था वो कर रहा था। 2 बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसे बस जल्द से जल्द अमसाल तक पहुंचना था। इब्तिहाज के लोगों को निकाह रोकने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि वकास दुरानी को पहुंचने में काफी वक्त लग गया था। वकास दुरानी के पहुंचने के 15 मिनट बाद इब्तिहाज भी ये एड्रेस पे पहुंच गया था। इब्तिहाज के पास हर वक्त एक पिस्तौल मौजूद होती थी, जिसका उसके पास लाइसेंस भी था, और एक पिस्तौल वो गाड़ी में रखता था। आज गाड़ी वाली पिस्तौल उसके काम आनी थी। इब्तिहाज गुस्से में किसी भूखे शेर की मानन भपरा हुआ हाथ में पिस्तौल लिए दुरानी हाउस की जानिब बढ़ रहा था। गेट पे मौजूद गार्ड ने उसे आगे बढ़ने से रोका था, लेकिन इब्तिहाज को कौन रोक सकता था। गार्ड को इब्तिहाज के लोगों ने पकड़ा था, जबकि इब्तिहाज खुद आगे बढ़ा था और घर के मेन दरवाजे पे फायर किया था, जिसकी वजह से लॉक टूट गया था। पिस्तौल पीछे कमर पे लगाए इब्तिहाज अब घर के अंदर खड़ा था और सामने का मंजर देख वो अपने आपे से बाहर होने लगा था। अमसाल को रहान के बराबर में लाल दुपट्टे के घूंघट में बैठे देख इब्तिहाज को देर के लिए सदमे में चिल्लाया गया। उससे पहले अमसाल के हाथ में अंगूठी भी इसी अरहान ने पहनाई थी, और आज ये लाल दुपट्टा भी इब्तिहाज से पहले अरहान के लिए उड़ाया गया था। नेट के दुपट्टे में छुपा अमसाल का चेहरा इब्तिहाज को साफ दिख रहा था, और चेहरे पे फैला डर भी। इब्तिहाज तन फन करता आगे बढ़ा था। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी आ गए थे और घर के दरवाजे पे ही खड़े हो गए थे। इब्तिहाज सीधा अरहान की तरफ आया था और उसे गिरबान से पकड़कर खड़ा किया था। वक्कास दुरानी इब्तिहाज को यहाँ देख कर हैरान थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, बोल? इब्तिहाज चीखा था, साथ ही अरहान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था, जिसकी वजह से उसके होंठ का कोना फट गया था और वहां से खून बहना शुरू हो गया था। अब आ ही गए हो तो निकाह में शिरकत भी कर लो। चलो तो गवाह के लिए तो तुम्हारा नाम दर्ज करवा दूं। अरहान अपना होंठ साफ करते हुए जिलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। निकाह तो नहीं, लेकिन तेरा जनाजा जरूर पढ़ाऊंगा मैं। वो शौक है ना ये फूल सजाने का तुझे, अब इन्हीं फूलों को तेरी कब्र की जीनत बनाऊंगा मैं। इब्तिहाज ने फूलों की हल्की हल्की सजावट पे चोट की थी और साथ ही अरहान को मारना शुरू कर दिया था। इब्तिहाज ने अरहान को मार मार कर उसकी हालत बुरी कर दी थी, लेकिन अब भी उसका दिल नहीं भरा था। वो इस कदर आपे से बाहर था कि वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। रेहान और अशमिल जो अरहान को बचाने के लिए आगे आए थे, वो खुद भी इब्तिहाज के अताब का शिकार हो गए थे। अमसाल, जिसका हाथ माहा और अलमीर ने पकड़ रखा था, इब्तिहाज की तरफ बढ़ी थी। छोड़ दे रहान को प्लीज, वो मर जाएगा। अमसाल इब्तिहाज के सामने आई थी और रोते हुए गुजारिश की थी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगा था कि इससे निकाह कर लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कभी नहीं। जो मेरा है वो बस मेरा ही है, और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? क्या कहा था मैंने तुमसे कि अब कोई होशियारी ना करना? तो फिर क्यों? अमसाल, अमसाल को देखते ही इब्तिहाज ने अरहान को दूर फेंका था और अमसाल को बाजुओं से पकड़े झंझोड़ रहा था। अमसाल के सर पे मौजूद लाल दुपट्टा उतर के कंधों तक आ गया था, जिसे इब्तिहाज खूनखार नजरों से घूर रहा था। अरहान इब्तिहाज के झटके से दूर जा गिरा था। उसके वालिदैन फौरन उसे उसकी तरफ बढ़े थे और उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। अरहान की वालिदा अपने बेटे को तकलीफ में देखकर रोने लगी थी, जिन्हें जुबारिया बेगम चुप करवा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये निकाह नहीं कर रही थी, अमसाल रोते हुए बोली थी, साथ ही खुद को इब्तिहाज की गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश में लगी थी। अच्छा, तुम नहीं कर रही थी ऐसा? तो फिर ये सब कुछ जो अभी मैंने देखा वो क्या था? इब्तिहाज की गिरफ्त ऐसी थी कि छुड़ाई नहीं जा सकती थी। इब्तिहाज, मेरा हाथ छोड़ें प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अमसाल ने शायद आज पहली बार इब्तिहाज का नाम लिया था, लेकिन इब्तिहाज को फिलहाल इसकी कोई खुशी नहीं हो रही थी। तकलीफ के बायस अमसाल से बोला न जा रहा था। इब्तिहाज के गुस्से की शिद्दत अमसाल के बाजुओं से बर्दाश्त न हो रही थी। इब्तिहाज की आंखें गुस्से के बायस लाल अंगारा हो रही थी, लेकिन उनमें हल्की नमी भी थी। इब्तिहाज बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा था। अमसाल को झटके से छोड़कर एक बार फिर अरहान की जानिब रुख किया था।
لیکن امسال جس نے ابتہاج کے جھٹکے سے خود کو گرنے سے بچایا تھا، دوبارہ ابتہاج اور ارحان کے درمیان دیوار بنی تھی۔ میرے راستے سے ہٹو ورنہ میں تمہیں بھی جان سے مار دوں گا، ابتہاج دھاڑا تھا۔ امسال ڈری تھی لیکن اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ اس وقت جتنا ہو سکے اتنا دور رہو مجھ سے امسال، ورنہ میں غصے میں سچ میں ہی مار دوں گا۔ ابتہاج نے اپنے کمر کے ساتھ لگی گن ہاتھ میں لی تھی۔ گن دیکھتے ہی سب کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ حمدان صاحب اپنی بیٹی کی جانب بڑھے تھے لیکن امسال نے انہیں مزید آگے آنے سے روک دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کوئی نقصان پہنچے۔ مار دیں مجھے، اچھا ہے، فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی، امسال نے بغیر ڈرے کہا تھا۔ وہ بہت مضبوط تھی یا شاید حالات نے بنا دیا تھا۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، کسی اور کی سننا میں نے سیکھا نہیں۔ ابتہاج کبھی بھی امسال کو مار نہیں سکتا تھا۔ امسال کو آگے سے ہٹا کر وہ ارحان کی طرف آیا تھا۔ چھوڑو دو میرے بیٹے کو، اب تمہارے راستے میں نہیں آئے گا وہ، وقاص درانی نے التجا کی تھی۔ ابتہاج کا جنون تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ دنیا تنگ کر دوں گا میں سب پہ، درانی گروپ کے چیئرمین ہے نا اب، تباہ کر دوں گا میں درانی گروپ کو، وہ بھی ایسے کہ کبھی دوبارہ کھڑی نہیں ہو پائے گی آپ کی کمپنی۔ ابتہاج نے دھمکی نہ دی تھی، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، بس اس کا ایک اشارہ ملنے کی دیر تھی۔ یہ بات وقاص صاحب بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اس وقت ابتہاج کے لہجے میں ہلکا غرور تھا لیکن غصے میں کیا بول رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، ورنہ غرور نہ تھا وہ کرتا تھا اور نہ ہی اسے پسند تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرنا، میں یقین دلاتا ہوں کہ اب میرا بیٹا تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ وقاص درانی کے لہجے میں ڈر کی جھلک تھی جو صرف ابتہاج ہی محسوس کر سکتا تھا۔ ابتہاج اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس وقت اس کے سر پہ خون سوار تھا۔ اشارہ کرنے پہ اس کے گارڈز نے اندر آ کر ارحان کو پکڑا تھا جبکہ ابتہاج نے اپنی گن ارحان کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی تھی۔ بیٹا پلیز چھوڑ دو میرے بیٹے کو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میری گود مت اجاڑو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ارحان کی والدہ ابتہاج کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ ارحان جو کہ کچھ ہوش میں تھا، اس سے یہ برداشت نہ ہو رہا تھا۔ صرف آپ کی وجہ سے ان کی جان بخش رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ آپ کا بیٹا میرے راستے میں آیا تو واقعی میں اس کی جان لے لوں گا۔ ابتہاج کی ایسی تربیت نہ تھی کہ وہ اپنے بڑوں کی تذلیل کرتا، اسی لیے غصے میں ہونے کے باوجود بھی گن ہٹا دی تھی اور دوبارہ اپنی کمر پہ لگا لی۔ ارحان کی والدہ کے ہاتھ نیچے کر کے ابتہاج نے اپنی بات کہی تھی۔ میری محبت کو اپنے نام کی چنری پہنانے کی بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے، اس کا حساب تو میں الگ سے لے لوں گا۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، پہلے ہسپتال لے جانا، اس کے بعد بیسمنٹ میں ڈال دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ ابتہاج نے ارحان کو گریبان سے پکڑا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، پھر اپنے گارڈز کو مخاطب کیا تھا۔ ابتہاج کا حکم ملتے ہی گارڈ ارحان کو اٹھا کر لے گئے تھے اور کوئی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ آپ پلیز ارحان کو چھوڑ دیں، کہاں بھیج رہے ہیں اسے؟ میں نہیں کر رہی تھی اس سے نکاح۔ امسال ارحان کے والدین کی حالت دیکھ ابتہاج کے پاس آئی تھی جو اب اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم تو بات بھی مت کرو مجھ سے اس وقت، تمہاری شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا میرا۔ ابتہاج نے اپنا چہرہ امسال کی طرف سے پھیر لیا تھا۔ بے شک مجھ سے بات نہ کریں لیکن ارحان کو چھوڑ دیں۔ امسال دوسری طرف آئی تھی اور روتے ہوئے ابتہاج سے بولی تھی، یہ تم جس کے لیے میرے سامنے گڑ گڑا رہی ہو اور آنسو بہا رہی ہو، یقین کرو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ تم کسی دوسرے مرد کے لیے رو۔ تمہاری آنکھ سے اس چوزے کے لیے نکلے ایک ایک آنسو کا حساب اور بدلہ میں اس سے ضرور لوں گا۔ ابتہاج نے اپنی شعلے برساتی آنکھوں سے امسال کو گھورتے ہوئے کہا تھا اور امسال اس کے انداز پہ سہم گئی تھی۔ میں اس کے لیے نہیں رو رہی بلکہ میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں، چھوڑ دیں اس کو، وہ ایک ہی بیٹا ہے اپنے ماں باپ کا۔ امسال کو ایسا لگ رہا تھا جسے وہ پاگل ہو جائے گی۔ ہمارے نکاح کے بعد چھوڑ دوں گا، ویسے ہی میرے کسی قسم کا کام کا نہیں ہے وہ، اور ہاں ایک اور بات، نکاح اگلے ماہ کے بجائے جمعے کے دن ہوگا اور آئندہ ہفتے میں باقی تمام فنکشنز کے ساتھ رخصتی۔ مجھے اب آپ لوگوں پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے جو میرا ہے اسے میں جلد سے جلد لے جاؤں گا۔ شادی کے انتظامات کی فکر نہ کریں آپ لوگ، تمام انتظامات ہو جائیں گے۔ ابتہاج نے فیصلہ کن لہجے میں اپنی بات کہی تھی۔ امسال اور اس کے والدین ابتہاج کی بات سن کر سناٹے میں آ گئے تھے۔ نکاح پہ ملاقات ہوگی میری جان، اور سارے بدلے لے لوں گا میں تم سے۔ ابتہاج نے امسال کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس کے سر سے لال دوپٹہ اتار کر اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے شان بے نیازی سے چلتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ امسال وہیں زمین پہ ڈھہ گئی تھی۔ المیر فوراً امسال کی طرف گئی تھی، وہ بھی ارحان کے لیے بے حد پریشان تھی۔ ماہ اشمل سے خیریت پوچھ کر امسال کے پاس آئی تھی۔
हमदान साहब और जुबारिया बेगम अरहान के वालिदैन को तसल्ली दे रही थी और शर्मिंदा भी थे, जबकि उनका कोई कसूर न था। इत्तेहाद दुरानी हाउस से निकल के बिला वजह सड़कों पे गाड़ी भगा रहा था और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर ऐसे ही सड़कों पे फिरने के बाद अब वो साहिल समंदर पे मौजूद था। समंदर पे चलती ठंडी हवा उसे उसके बाल माथे पे गिरते थे और फिर खुद ही हट भी जाते थे। वो खुद अपनी गाड़ी के बोनट से टेक लगाए खड़ा था। पहले से हल्की सुर्ख आंखें नीचे पड़े लाल दुपट्टे पे टिकी थी जो जल रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी जिसकी मदद से वो अपने अंदर के गुस्से को धुएं की सूरत उड़ा रहा था। इत्तेहाद सिगरेट का शिदाई ना था, लेकिन अपने गुस्से को खत्म करने के लिए वो सिगरेट फूंकता था। जैसे जैसे दुपट्टा जलकर राख की सूरत इख्तियार कर रहा था, इत्तेहाद का गुस्सा भी कम हो रहा था। जब वो दुपट्टा पूरी तरह से जल गया तो इत्तेहाद को भी कुछ सुकून महसूस हुआ और उसने अपने घर की राह ली, क्योंकि घर वालों के फोन पे फोन आ रहे थे। इत्तेहाद ने किसी तरह बहाने बनाकर जहांगीर साहब को राजी कर लिया था और वो इत्तेहाद की बातों में आकर मान गए थे। अगले जुम्मे को निकाह और आइंदा हफ्ते में बाकी फंक्शंस के लिए। इत्तेहाद लोगों को अपनी बातों में उलझाने में माहिर था। ये भी सच था कि जहांगीर साहब उसकी बातों में कम ही आते थे, क्योंकि वो अपने बेटे को खूब जानते थे। लेकिन जल्दी शादी वाली बात में उन्हें भी कुछ गलत नहीं लगा था, क्योंकि इत्तेहाद ने अमसाल के फाइनल पेपरों का बहाना बनाया था। चूंकि वक्त बहुत ही कम रह गया था, इसीलिए मीर जहांगीर ने तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी ले ली थी। उनके लिए काम कोई मुश्किल काम न था। बुध का दिन था। मीर जहांगीर जन्नत बेगम और अपनी बड़ी बहू यानी मीर मेराज की बीबी महरविश के हमरा अमसाल के घर आए थे निकाह के लिए बरी देने। अमसाल सबसे मिलकर और कुछ देर वहां बैठकर दोबारा अपने कमरे में चली गई थी। महरविश खूबसूरत तो थी ही, साथ ही खुश अखलाक भी थी। उसे अपने होने वाली देवरानी से दोस्ती करनी थी, क्योंकि ये उसकी और अमसाल की पहली मुलाकात थी। महारविश जन्नत बेगम को बताकर और जुबारिया बेगम से इजाजत लेकर अमसाल के पास आई थी। आप अंदर आए, दरवाजे पे दस्तक दी गई थी। अमसाल ने जब दरवाजा खोला तो सामने महारविश को खड़ा पाया। महारविश को अंदर आने की दावत देकर अमसाल भी उसके पीछे चलने लगी थी। हाँ, वहाँ बड़ों की कंपनी में बोर हो रही थी, इसलिए सोचा अपनी होने वाली देवरानी से दोस्ती ही कर लूं। महारविश मुस्कुराते हुए बोली थी, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी बोर हो रही थी, आप बैठे ना। अमसाल खुद भी दोस्ताना तबीयत की मालिक थी और महारविश उसे बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हें पता है, मुझे बहुत शौक था तुम्हें देखने का, तुमसे मिलने का, लेकिन इत्तेहाद बदतमीज लेकर ही नहीं आता था मुझे। महारविश ने इत्तेहाद का जिक्र करते हुए सड़ा हुआ मुंह बनाया था, जिसमें अमसाल को हंसी आई थी। हाँ हाँ हाँ, वैसे आपको मुझसे मिलने का इतना शौक क्यों था? अमसाल दिलचस्पी से गोया हुई थी। मुझे ये देखना था, आखिर वो कौन लड़की है जिसने मेरे देवर जैसे पत्थर को दीवाना बना दिया है। महारविश हंसते हुए बोली थी और उसकी बातों पे अमसाल मुस्कुरा रही थी। तुम बहुत अच्छी हो अमसाल, तुम मेरी देवरानी बनोगी तो हम दोनों बहुत मजे करेंगे और दोनों भाइयों को साथ ही तंग किया करेंगे। इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। महारविश का बस नहीं चल रहा था कि अभी अमसाल को उठाकर अपने साथ ले जाए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मजा आएगा। अब तो वैसे भी हम दोस्त हैं। अमसाल भी महाविश की बातों से खुशी महसूस कर रही थी। अब मैं चलती हूँ, परसों मुलाकात होगी। महाविश अमसाल से मिलकर चली गई थी, क्योंकि उनके जाने का वक्त हो रहा था। अमसाल को महाविश बहुत पसंद आई थी, वो उसे बिल्कुल अपनी तरह लगी थी। अमसाल को सिर्फ इत्तेहाद से मसला था, इसलिए वो सिर्फ इत्तेहाद से चिढ़ती थी, लेकिन इत्तेहाद के तमाम घर वालों की वो बहुत इज्जत करती थी और उनसे अमसाल को कोई गिला या चिढ़ना थी। एक दिन बाद निकाह था। मीर जहांगीर ने तमाम इंतजाम खूब अच्छे से संभाल लिए थे और हमदान साहब को भी मुतमईन कर दिया था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। तमाम अफराद मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। खुद इत्तेहाद भी घन चक्कर बना फिर रहा था, क्योंकि उसे अपनी शादी में हर चीज परफेक्ट चाहिए थी। हमदान साहब और जुबारिया बेगम भी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गए थे। अमसाल की शादी अब इत्तेहाद से होनी थी, तो बेहतर यही था वो अपनी अकलौती बेटी को अपनी दुआओं के साये में अच्छे से रुखसत करें। इत्तेहाद के घर वालों से मिलकर हमदान साहब कुछ मुतमईन थे कि उनकी बेटी कहीं ऐदे गैरों में नहीं, बल्कि खानदानी लोगों में जा रही थी। अमसाल को अपनी मामा से पता चला था कि रुखसती अगले हफ्ते ही होगी। ये बात उस दिन इत्तेहाद ने भी कही थी, लेकिन फिर भी अमसाल इतनी जल्दी रुखसती के लिए जहनी तौर पर तैयार ना थी। कुछ सोचकर अमसाल ने इत्तेहाद को फोन किया था। हेलो, इत्तेहाद रूखे फीके अंदाज में बोला था। आज उसके लहजे में वो शौकी नहीं थे जो हर बार होती थी। शायद इत्तेहाद अब भी अमसाल से नाराज था, लेकिन यहाँ किसको फर्क पड़ना था।
मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अमसाल ने भी साफ बात करना चाहिए थी। बोलो, सुन रहा हूँ। इफ्तिहाज बहुत संजीदा अंदाज में बोला था। आप अगले हफ्ते रुखसती ना करवाएं, बेशक निकाह कर लें, लेकिन रुखसती अभी नहीं प्लीज। अमसाल ने इल्तिजा की थी। वजह? कोई ठोस जवाब पेश करना इस बात का, वरना अपना टाइम जाया ना करो, ना ही मेरा। इत्तेहाज के लहजे में मौजूद बेरुखी अमसाल को अजीब लग रही थी। मैं अभी तैयार नहीं हूँ रुखसती के लिए। अमसाल ने साफ गोई से काम लिया था। हाँ तो पार्लर जाकर तैयार होगी ना, इसमें क्या मसला है? इत्तेहाज मजाक करते हुए बोला, लेकिन अंदाज बिल्कुल संजीदा था। मैं वो तैयार होने की बात नहीं कर रही। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ अभी। अमसाल का दिल कर रहा था या तो अपना सर दीवार में मार दे या फिर इत्तेहाज का। हाँ तो अभी पूरा हफ्ता बाकी है, कर लो अपने जहन को तैयार। नॉट अ बिग डील। एनीथिंग एल्स? इत्तेहाज के पास हर मसले का हल था। देखिए, मेरे पेपर होने वाले हैं, उसके बाद करवा ले रुखसती। अमसाल को अचानक से अपने पेपर याद आए थे। तुम्हारे पेपर 2 महीने बाद हैं। सॉरी नो। इत्तेहाज ने अपनी बात पे कायम था। मुझे तैयारी करनी है पेपर्स की, वैसे ही आपकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। अमसाल भी अपनी जिद पे कायम थी। हाँ तो रुखसती हो जाएगी, अच्छा है, आराम से तैयारी करना अपने पेपर्स की, टेंशन फ्री होकर। चलो, मैं खुद तुम्हें ट्यूशन दे दूंगा और पैसे भी नहीं लूंगा। क्या याद करोगी तुम भी? इत्तेहाज को मजा आ रहा था अमसाल को तंग करने में। आप समझना। अमसाल बोल ही रही थी कि इत्तेहाज ने उसकी बात काटी। रुखसती तो अगले हफ्ते ही होगी, एंड दैट्स फाइनल। मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। इत्तेहाज ने अपनी बात कहकर कॉल काट दी थी। इस शख्स से तो बात करना ही फजूल है, गुंडा कहीं का। अमसाल ने गुस्से से पैचो-ताप खाते हुए कहा था और फोन बेड पर फेंक कर बाहर चली गई थी। इत्तेहाज ने कॉल काट कर अपना फोन फेंका था। इस वक्त वो ऑफिस में नहीं बल्कि अपने घर के जिम में मौजूद था। इत्तेहाज को जब ज्यादा गुस्सा आता था तो अक्सर वो जिम में ही पाया जाता था और अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पे उतारता था। हैदर और मिराज भी इस वक्त जिम में मौजूद थे। इत्तेहाज की एक एक हरकत का जायजा ले रहे थे। क्या हो गया है तुझे? ठंडा हो जा, जब से इस्लामाबाद से आया है मिर्च चबाए बैठा है। हैदर जो ट्रेडमिल पे भाग रहा था, रफ्तार हल्की करते हुए बोला था। इत्तेहाज कोई जवाब न दे रहा था, बस पंचिंग बैग पे मुक्के बरसा रहा था। काले रंग के सैंडो और ट्राउजर में मलबूस चेहरे पे मौजूद पसीने के नन्हे कतरे उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रहा था। हाथों की रगें हमेशा की तरह उभरी हुई थी। हैदर और मिराज दोनों को इत्तेहाज के गुस्से की वजह समझ न आ रही थी। हैदर ट्रेडमिल से उतरा था और मिराज अपनी साइकिलिंग मशीन से। दोनों इत्तेहाज के पास गए थे। छोटे मीर, क्या मसला है, बताओ हमें, क्यों इतने गुस्से में हो तुम? मिराज ने पंचिंग बैग पकड़ा था जो कि इत्तेहाज के जोरदार मुक्कों से झूल रहा था। इत्तेहाज को मिराज का ऐसा करना पसंद न आया था। अब बोल भी दे, क्या मसला है, क्यों इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? हजार बार कहा है गुस्सा कम किया कर, दिमाग की नस फट जाएगी तेरी किसी दिन। हैदर को इत्तेहाज का तेज गुस्सा सख्त नापसंद था। अमसाल है मेरा मसला, सुनती ही नहीं कुछ, बस अपनी ही करती है। चटाक भर की है वो मेरे सामने, लेकिन शेरनी बनती है। सब डर जाते हैं मेरे गुस्से से, एक वो ही है जो नहीं डरती। उल्टा चीख कर मेरे गुस्से को मजीद हवा देती है। इत्तेहाद चिड़े हुए लहजे में बोला था। उसको शायद इस बात का इल्म नहीं था कि उसके गुस्से से अमसाल की रूह फना होने लगती है। इत्तेहाद की बात सुनकर हैदर और मिराज, जो कब से अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, बिल आखिर हंस पड़े थे और उनकी हंसी पूरे जिम में गूंज रही थी। हैदर तो हंसते हंसते नीचे लेट गया था। दोनों अपने छोटे भाई का मजाक उड़ा रहे थे। किसने सोचा था कि कभी मीर इत्तेहाज की ऐसी हालत भी होगी? शट अप। इत्तेहाज की धार उन दोनों की हंसी से ज्यादा तेज थी। दोनों की हंसी को ब्रेक लगा था, जबकि इत्तेहाज दोनों को खूंखार नजरों से घूर रहा था। ठंडा हो जा भाई, कूल कूल, लंबी सांस ले, शाबाश। हैदर न जाने क्या ओल पोल बकने लगा था। अब जब मोहब्बत की है तो भुगतो भी। मेराज ने अपनी हंसी पे काबू पाते हुए सीरियस अंदाज में कहना चाहा था, लेकिन नाकाम। आप दोनों ने भी तो की है मोहब्बत, आप लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों? इब्तिहाज ने अपने गुस्से को दबाया था। आखिर को वो अपने भाइयों पे गुस्सा नहीं कर सकता था। मैंने तो तुझे कहा था कि लड़कियों का दिल मत तोड़, अब देख तुझे सजा मिल रही है। भाभी सही करना चाह रही हैं इसको। हैदर की बात पे एक बार फिर दोनों हंसने लगे थे। तेरी ही बद्दुआ लगी है मुझे, कमीने, काली जबान है तेरी। इत्तेहाज ने जले हुए अंदाज में कहा था। उसे हैदर की कही बात याद आ गई थी जो हैदर ने बहुत पहले कही थी। जैसे तुम हो, तुम्हें काबू करने के लिए अमसाल जैसी लड़की की जरूरत है छोटे मीर।
معراج اور حیدر ابتہاج کی حالت کے خوب مزے لے رہے تھے۔ ابتہاج دونوں کی طرف انہیں مارنے کی غرض سے بڑا تھا، اس کا ارادہ بانپ کر دونوں نے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ جنت بیگم، زوہیلا اور مہاروش تینوں لاؤنج میں بیٹی امثال کے لیے جویلری منتخب کر رہی تھی جب معراج اور حیدر بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئے تھے اور ان دونوں کے پیچھے ابتہاج آتا دکھائی دیا تھا۔ تینوں عورتیں ان تینوں جوان مردوں کو بچوں کی طرح یہاں سے وہاں بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ زوہیلا اور مہاروش تو تینوں کو دیکھ ہنسنے میں مصروف تھی جبکہ جنت بیگم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ان کے یہ تینوں بیٹے اکثر اوقات ایسے ہی پاگل ہو جایا کرتے تھے اور بچوں کی طرح لڑتے تھے۔ ماما بچائیں، آپ کا چھوٹا سپوت آج ہماری جان لے لے گا، حیدر جنت بیگم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ معراج سیڑھیوں پہ کھڑا تھا تاکہ آسانی سے اوپر اپنے کمرے میں بھاگ سکے۔ ابتہاج لاؤنج کے بیچ میں کھڑا دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم تینوں چھوٹے بچے ہو کیا جو ایسے گھر میں بھاگم دوڑ مچا رکھی ہے؟ باپ بننے کی عمر ہے تینوں کی اور تینوں بچے بنے پڑے ہیں۔ جنت بیگم نے تینوں کو ڈانٹا تھا۔ اور ابتہاج، تم، شادی ہے تمہاری اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ جنت بیگم کے لہجے میں افسوس تھا۔ ہاں ہاں شادی ہے، اسی لیے تو یہ حالت ہے بیچاری کی، حیدر کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بھاگا تھا اور پھر وہ اور معراج دونوں اوپر بھاگ گئے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں میں دونوں کو، ابتہاج بھی چیختا ہوا دونوں کے پیچھے بھاگا تھا جبکہ جنت بیگم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی کیونکہ ان تینوں کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت کم ہونے کے باوجود بھی جہانگیر کے سپورٹ کے ساتھ شادی کی تیاریاں اپنی آخری مرحلے میں تھی۔ امثال اور ابتہاج کی شادی کے کارڈز بٹ چکے تھے اور کچھ ہی دنوں میں شادی کے فنکشن شروع ہونے والے تھے۔ امثال المیر اور ماہا کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ وہ دونوں امثال کی شادی کو اسپیشل بنانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی دوست خوش رہے۔ جو حالات چل رہے تھے، امثال کا خوش رہنا اور اپنی شادی کو انجوائے کرنا، اس سب کے چانسز بہت کم تھے۔ المیر اور ماہا نے امثال کے لیے سرپرائز برائڈل شاور پلان کیا تھا اور اس کے متعلق دونوں زباریہ بیگم سے بات کر چکی تھی۔ امثال کی کزنز کو بھی دونوں نے دعوت دی تھی۔ 4 بجے کا وقت ہوا تھا جب دونوں امثال کے گھر آئی تھی اسے لینے۔ برائڈل شاور ماہا کے گھر کے لان میں رکھا گیا تھا۔ دونوں کا منصوبہ تھا کہ امثال کو اس کی محنت بھی نہیں پڑنی چاہیے، اسی لیے ماہا کے گھر ساری سجاوٹ رکھی گئی تھی۔ تمام ڈیکوریشنز اور ماہا اور المیر نے مل کر کروائی تھی۔ امثال میرے ساتھ گھر چلو، کچھ دیر کے بعد ماہا بولی تھی۔ کس کے گھر؟ امثال نے سوال کیا تھا۔ میرے گھر اور کس کے؟ ماہا نے جواب دیا تھا۔ آپ بتانا پسند کریں گی کیوں آؤں میں آپ کے گھر؟ امثال نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا کیونکہ اچانک ہی ماہا اسے اپنے گھر لے جانے کی بات کر رہی تھی۔ یار تم بہت سوال کرتی ہو، جب چلو گی تو پتہ چل جائے گا، اس بار المیر نے جواب دیا تھا۔ نہیں یار پھر کبھی، گھر میں کافی کام ہے، ماما کی ہیلپ کروانی ہے مجھے، امثال نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ ہم نے آنٹی سے بات کر لی ہے اور ویسے بھی وہ بازار جا رہی ہیں انکل کے ساتھ، تم چلو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، ماہا عجلت میں بولی تھی۔ اچھا بھائی چلو، تم دونوں نے کہاں سننی ہے میری، میں آتی ہوں کپڑے بدل کے، امثال بولتے ساتھ ہی الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ ان میڈم کو کیا پتا کہ ابھی انہیں میرے گھر پہنچ کر بھی کپڑے تبدیل کرنے ہیں، ماہا نے المیر کو تالی مارتے ہوئے کہا تھا اور دونوں ہنسی تھی۔ ابتہاج فری ہو؟ ابتہاج آستینوں کے کف بند کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب نیچے کھڑی مہاروش نے اس سے پوچھا تھا۔ مہاروش کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آفس جا رہا ہوں، میٹنگ ہے ایک۔ کیوں، کوئی کام ہے آپ کو؟ ابتہاج مہاروش تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے امثال کی دوست ماہا کے گھر چھوڑ دو گے؟ معراج بھی نہیں ہے اور ڈرائیور بھی کسی کام سے گیا ہوا ہے، مہاروش نے معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ کہاں کی سواری ہے بھائی، کس کی شادی میں جا رہی ہیں وہ بھی اس وقت؟ ابتہاج نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ ابتہاج کی اپنی بھابھی سے کافی بنتی تھی، اپنی دیورانی کے برائڈل شاور میں جا رہی ہوں، مہاروش نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ امثال کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ابتہاج جو کوئی میسج ٹائپ کر رہا تھا فوراً گردن اٹھا کر پوچھا تھا۔ ہاں تو اور کتنی دیورانیاں ہیں میری، مہاروش نے ابتہاج کے رد عمل پہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کتنی غلط بات ہے، دولہے کو تو بلایا ہی نہیں، ابتہاج نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ لڑکیوں کا فنکشن ہے یہ، تم آ کر کیا کرو گے؟ تمہاری بیچلر پارٹی کروائیں گے، مہاروش نے ہنستے ہوئے ابتہاج کو لارا دیا تھا۔ بس کر دے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آ جائیں آپ، ابتہاج کہتے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ مہاروش مسکراتے ہوئے اپنا بیگ لینے گئی تھی۔ روئی نہیں جا رہی تھی آپ کے ساتھ؟ ماہم گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ابتہاج نے پوچھا تھا۔ نہیں، اس کا کسی نمائش میں جانا ضروری تھا اس لیے وہ نہیں آ سکی، مہاروش نے جواب دیا تھا۔
اس کی تصویر ضرور لائیے گا بھابھی، مہا کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے ابتہاج نے کہا تھا، جس پہ مہاروش سے چھیڑتے ہوئے حامی بھر کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ مہاروش کے اندر جاتے ہی ابتہاج وہاں سے چلا گیا تھا۔ المیر اور ماہا نے امسال کو ایک بار پھر کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں بھیج دیا تھا۔ امسال سمجھ گئی تھی کہ یہ دونوں کچھ کرنے والی ہیں، لیکن کیا چیز کہ اسے کوئی اندازہ نہ تھا۔ امسال کپڑے بدل کر باہر آئی تھی، پھر المیر اور ماہا نے اسے تیار ہونے میں مدد کی تھی۔ لون کو بہت نفیس اور خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک طرف پھولوں کی لڑیوں سے سجا بیک گراؤنڈ بنایا گیا تھا، جس کے آگے ایک بڑا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا، جس کو مختلف چیزوں سے سجایا گیا تھا۔ ٹیبل پر بڑا سا بلیک فارسٹ کیک موجود تھا، جس پہ برائڈ ٹو بی لکھا ہوا تھا اور کانگریچولیشن کا گولڈن پرومپٹ لگا ہوا تھا۔ لون کا ایک کونا جہاں کیاریوں میں مہکدار گلاب کے پھول لگے تھے، اس طرف فوٹو بوتھ بنایا گیا تھا۔ امسال کی تمام دوستیں اور کزن آ چکی تھی اور تمام تیاریاں بھی مکمل تھی۔ اب صرف اس کے آنے کا انتظار تھا، جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ آخر تم دونوں کرنا کیا چاہ رہی ہو میرے ساتھ؟ امسال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ سلک پٹی باندھ دی گئی تھی۔ امسال کے ایک طرف المیر تھی، جبکہ دوسری طرف مہاروش، جس کی موجودگی سے امسال بے خبر تھی۔ ماہا نے پیچھے سے امسال کا گھیردار لانگ اسکرٹ پکڑا ہوا تھا۔ تینوں امسال کو لون کی جانب لے جا رہی تھی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، بس پہنچنے والے ہیں، المیر نے جواب دیا تھا، اور اب لون میں آ چکے تھے۔ ریڈی؟ ماہا چیخی تھی اور امسال کو آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے کہا تھا۔ امسال نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس وقت اکیلی کھڑی ہے، کیونکہ ماہا کی آواز فاصلے سے آئی تھی۔ سرپرائز! سب ایک ساتھ چیخے تھے، جبکہ امسال شزدہ رہ گئی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ المیر بولی تھی۔ امسال لون کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، تمام سجاوٹ اور سب کی اپنے لیے محبت دیکھ ایموشنلی ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب امسال کے پاس آئے تھے اور اسے چپ کروایا تھا۔ امسال سب سے ملی تھی اور پھر باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا تھا۔ امسال کو وہیں بٹھایا گیا تھا جہاں چمیلی اور موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں لگی تھی، جو منظر اور ہوا کو مزید تازہ بنا رہی تھی۔ ان پھولوں کی خوشبو امسال کی پسندیدہ ترین خوشبوؤں میں سے ایک تھی۔ امسال نے ملٹی رنگ کی شارٹ شرٹ اور اس پہ سفید اور گولڈن رنگ کا لال اسکرٹ سے تن کیا ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی سفید رنگ کا تھا، جس پہ شرٹ جیسے ہی رنگ برنگے موتیوں کا کام کیا ہوا تھا۔ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا، جو کہ امسال کے کمر سے بھی نیچے تک تھے۔ ہلکے میک اپ نے امسال کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا تھا۔ سب نے مل کر امسال کو پھولوں سے بنا زیور پہنایا تھا، کسی نے بالیاں تو کسی نے کنگن۔ یہ تمام منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہے تھے۔ امسال اس وقت اپنے تمام غم بھول گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ کھل کے دل سے مسکرا رہی تھی، اور اس کی یہی پرکشش مسکراہٹ اس کی خوشی کا ثبوت تھی۔ تم سب نے تو میرا مایوں آج ہی کر دیا۔ امسال کی بات پر سب ہنسے۔ کچھ دیر بعد کیک کاٹا گیا تھا، پھر فوٹو سیشن ہوا تھا، اور ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ آج کا دن امسال کے لیے بہت خاص تھا، اور یہ وہ دن زندگی بھر نہ بھولنے والی تھی۔ سچے اور مخلص دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، مشکل وقت میں سہارا بن جاتے ہیں، روتے ہوئے بھی ہنسا دیتے ہیں کہ انسان اپنی غم کچھ پل کے لیے ہی صحیح بھول جاتا ہے۔ ایک اچھا اور مخلص دوست اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے دوستوں کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ وہ ہنس رہی تھی، ہر دکھ ہر غم سے پاک اس کی یہ شفاف ہنسی۔ اس کی اس ہنسی کے لیے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جسے اس وقت اس کے سامنے اس کی عزیز جان کی تصویر نہیں، بلکہ وہ خود بیٹھ کر ہنس رہی ہو۔ جس کسی نے بھی یہ تصویریں لی تھی، ابتہاج اس کا دل سے مشہور تھا۔ ابتہاج کی آنکھوں کے سامنے اس کا فون تھا، اور اس میں اس کی جانیں بہارا کی تصویر، جسے وہ بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ امسال کے برائڈل شاور کی تصویر تھی، جس میں وہ کھل کے ہنس رہی تھی، اور اسی وقت یہ تصویر لی گئی تھی۔ تمام تصویریں موصول ہونے کے بعد مہاروش نے وہ ابتہاج کو بھی بھیجی تھی، اور یہ تصویر ابتہاج کی پسندیدہ تصویریں بن گئی تھی۔ جمعے کا دن آ پہنچا تھا، اور آج امسال کو ابتہاج کے نام ہو جانا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نکاح کا دن ہر لڑکی کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کے لحاظ سے ہر لڑکی کے الگ الگ خواب ہوتے ہیں، لیکن امسال کا معاملہ مختلف تھا۔ امسال اپنی زندگی کے اتنے خوبصورت دن پہ بالکل بھی خوش نہ تھی۔ آج کا دن شاید اس کے لیے اپنی موت کا دن تھا، کیونکہ اس کے بقول آج پرانی امسال مرنے والی تھی۔ امسال اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی، اور ابتہاج بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ امسال چاہتی تھی کہ اس کا نکاح اس کے اپنے ہی گھر میں ہو، اس لیے نکاح کی تقریب گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی۔
थोड़ी देर बाद अमसाल को बाहर लाया गया था। सफेद रंग की शॉर्ट शर्ट और सफेद ही रंग का घेरदार फ्लैपर पहन रखा था। दोनों पे मैरून रंग का नफीस काम किया हुआ था। सफेद ही रंग का दुपट्टा था जिसमें मैरून रंग के बॉर्डर्स बने हुए थे। दुपट्टा सर पे हेयर स्टाइल के साथ सेट किया हुआ था। एक लाल नेट के दुपट्टे का इजाफा किया गया था जिसकी मदद से अमसाल के चेहरे को छुपाया गया था। निकाह की मुनासबत से मेकअप किया गया था जिसके बाद अमसाल मजीद प्यारी लग रही थी। अमसाल इब्तिहाज पे बिजलियां गिराने वाली थी और दूसरी जानिब इब्तिहाज भी अमसाल को देखने के लिए बेताब था। अमसाल को एक सोफे पे बिठाया गया था। इब्तिहाज सामने मौजूद सोफे पे अपनी पूरी शान से भरा जमान था। दोनों के दरमियान पर्दा हायल था जो कि मोती की लड़ियों से बनाया गया था। इब्तिहाज ने सफेद रंग का कुर्ता पजामा और उस पे मैरून रंग की वेस्ट कोट पहन रखी थी। इब्तिहाज अपने शहजादों सा रूप लिए बहुत जच रहा था। हर देखने वाली आंख को विशाल की किस्मत पर रश्क हुआ था। इब्तिहाज के बराबर में जहांगीर साहब और जन्नत बेगम बैठे थे, जबकि अमसाल के बराबर में हमदान साहब और जुबारिया बेगम बैठे थे। अमसाल हमदान सिद्दीकी बिनते हमदान सिद्दीकी, आपका निकाह मीर इब्तिहाज जहांगीर वल्द मीर जहांगीर से हक मेहर 50 लाख तय पाया है, क्या आपको कबूल है? काजी साहब ने निकाह के कलमात अदा किए थे। मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। कबूल है, अमसाल ने धड़कते दिल के साथ कहा था। आपको ये निकाह कबूल है? एक बार फिर से सवाल हुआ था। तुम बहुत पछताओगे। कबूल है, अमसाल ने एक बार फिर रजामंदी दी थी। कबूल है, एक बार फिर से वही सवाल हुआ था जो अमसाल के अंदर से मार रहा था। अमसाल मर गई। मीर इब्तिहाज जहांगीर, कबूल है। अमसाल ने रजामंदी दे दी थी और हमेशा के लिए खुद को इब्तिहाज के नाम कर दिया था। एक जानिब अमसाल ने कांपते हाथ से निकाहनामे पे साइन किए थे। इस अरसे में हमदान साहब का हाथ अमसाल के सर पे मौजूद था। दूसरी जानिब इब्तिहाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मीर इब्तिहाज जहांगीर वल्द मीर जहांगीर, आपका निकाह अमसाल हमदान सिद्दीकी बिनते हमदान सिद्दीकी से हक मेहर 50 लाख तय पाया है, क्या आपको कबूल है? काजी साहब अब इब्तिहाज से रजामंदी ले रहे थे। कबूल है, एक लम्हे की देर किए बगैर इब्तिहाज की मर्दाना आवाज आई थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोबारा सवाल किया गया। कबूल है, एक बार फिर जवाब दिया गया। कबूल है, आखिरी बार सवाल हुआ। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। निकाह मुबारक हो मेरी जान। कबूल है, इब्तिहाज ने रजामंदी देकर खुद को अमसाल के लिए महफूज कर लिया था। इब्तिहाज ने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे और उसके पूरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ी थी क्योंकि अमसाल अब उसकी हो चुकी थी। दुआ के बाद मुबारकबाद का दौर चला था। तू भी हमारी लाइन में ही आ गया है फाइनली। निकाह मुबारक हो मेरे मीरू, हैदर ने इब्तिहाज को आंख मारते हुए कहा था और साथ ही गले मिला था। हैदर के मीरू कहने पर इब्तिहाज ने उसे घूरा था जबकि मिराज ने मुंह पे हाथ रखकर अपने कह कहे का गला घोटा था। इंसान बन जा, ससुराल में खड़ा हूँ मैं अपने, यहाँ कुछ इज्जत रहने दे मेरी। इब्तिहाज ने हैदर से गले मिलते हुए उसकी कमर पे मुक्का जड़ा था और साथ ही घूरना जारी था। हैदर भी ढीठों की तरह दांत निकाले हंस रहा था। अब पता चलेगा तुझे भी बेटा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं सिर्फ मनाने के लिए। हमारा मजाक उड़ाता था ना, अब हम भी उड़ाया करेंगे। हैदर जले हुए दिल से बोला था, लेकिन आखिर में अपनी शरीर मुस्कुराहट की नुमाइश करना नहीं भूला था। मैं पहले से ही बहुत पापड़ बेल रहा हूँ, इसलिए चुप करके खड़ा रहे। इब्तिहाज ने हैदर को एक और धमोका जड़ा था। दोनों के दरमियान हायल पर्दे को अब हटा दिया गया था और साथ ही अमसाल का घूंघट भी। इब्तिहाज की पहली नजर जब अमसाल पे पड़ी तो वो उसी में गुम हो गया। अपनी दुल्हन के रूप में आज अमसाल इब्तिहाज को सबसे ज्यादा हंसी लग रही थी। दोनों को एक साथ बिठाया गया था। इब्तिहाज की नजरें बार बार भटक के अपने बराबर में बैठे वजूद से टकरा रही थी। अमसाल जो कि इब्तिहाज के बराबर में बैठी थी बज़ाहिर तो सामने देख रही थी, लेकिन उसे इब्तिहाज की नजरों की तपिश अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। इब्तिहाज की नजरों की तपिश अमसाल से बर्दाश्त ना हो रही थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी लेकिन भाग नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद को अपने बराबर में बैठे देव के पास कैद कर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद बिलाखिर अमसाल को मौका मिल गया था। सब लोगों से मिलकर अमसाल अपने कमरे में बंद हो गई थी। इतनी देर भी वो बाहर सिर्फ अपने वालिदैन के लिए बैठी थी ताकि किसी को बातें बनाने का मौका ना मिले। इब्तिहाज को अमसाल से तन्हाई में मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अमसाल ने साफ इनकार कर दिया था। घर में काफी मेहमान थे इसलिए इब्तिहाज ने भी कुछ ना कहा था। आधी रात हो रही थी जब अमसाल के कमरे में मौजूद गैलरी में इब्तिहाज कूदा था।
ऐसा कैसे हो सकता था कि निकाह वाले दिन इत्तेहाज अपनी मनकूहा से ना मिलता। आज भी दरवाजा बंद था और इत्तेहाज पहले की तरह ही दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ था। अमसाल अब तक अपने निकाह वाले कपड़ों में मलबूस थी और सामने मौजूद बेड पर सो रही थी। उसके पुरकशिश चेहरे पे आंसुओं की लकीरों के मिटे मिटे से निशान था, जिसे बहुत रोई हो और रोते रोते ही सो गई हो। इत्तेहाज की नजर जब अमसाल के सोते हुए वजूद पे पड़ी और गौर करने पे अमसाल को अपने भेजे गए कपड़ों में पाया, तो उसे बेख्तियार ही अमसाल पे बहुत सा प्यार आया था। लेकिन जैसे इत्तेहाज की नजरें अमसाल के चेहरे से टकराई तो उसे निदामत ने आन घेरा, जैसे उसने बहुत गलत किया हो, जो कि उसने किया था। अब पछतावे का वक्त निकल चुका था और ना ही उसका कोई फायदा था। इत्तेहाज की नजरों की ही तपिश थी जिसकी वजह से अमसाल की नींद टूटी थी। अमसाल उठ के बैठी थी, दुपट्टा सिरहाने रखा हुआ था। लंबे भूरे बाल किसी आबशार की तरह उसकी कमर पे गिरे हुए थे। मुसलसल रोने की वजह से आंखें सूज गई थी और उनमें लाली नुमाया थी। अमसाल को इत्तेहाज की मौजूदगी का इल्म ना था, क्योंकि उसकी तरफ उसकी पीठ थी। निकाह मुबारक हो मेरी जान। इत्तेहाज की आवाज ने कमरे में मौजूद खामोशी को चीरा था। आप? अमसाल ने आवाज के ताक़ुब में देखा था और इत्तेहाज को सामने खड़ा पाकर पूरी तरह से जाग गई थी। साथ ही अपना गम ताजा होता हुआ महसूस हुआ था। जी मैं। इत्तेहाज चलता हुआ अमसाल के सामने आ खड़ा हुआ था। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? अमसाल ने फौरन अपने सरहाने पे रखा दुपट्टा उठाकर ओढ़ा था। मिलने आया हूँ अपनी मनकूहा से। तुम भी ना बहुत तंग करती हो मुझे। कभी पाइप चढ़ाओ तो पता चले। इत्तेहाज हमेशा की तरह बहुत चिल था। चले जाए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। अमसाल हल्की आवाज में चीखी थी। चीखो नहीं वरना फिर तुम्हें ही मसला होगा, और अब तो मेरी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी। इत्तेहाज अमसाल के बेड पे उसके बराबर में बैठ गया था। हाँ क्यों, मेरी किस्मत जो फूट गई है। अमसाल बेड से उठ गई थी। नहीं यार, किस्मत बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। इत्तेहाज बड़े मजे से बोला था। मैंने पूछा है कि आप क्यों आए हैं अब? मेरी मौत का तमाशा देखने। अमसाल की आंख से आंसू टपक कर नीचे गिरा था। टिकटॉक कम देखा करो तुम। इत्तेहाज कुछ ज्यादा ही ढीठ था। मेरे पास आपकी तरह इन फजूलियात का वक्त नहीं है। अमसाल के तन बदन में आग लग गई थी इत्तेहाज की इस बात पे। डायलॉग बाजी तो वैसे ही कर रही हो। इत्तेहाद को अमसाल को चिढ़ाने में नारान कागान की ठंडी हवाएं लगती थी। आई हेट यू मेरे इत्तेहाद, जस्ट गो अवे। अमसाल ने बहुत जब्त से कहा था। आई लव यू मोर मेरी जान। इत्तेहाद का अंदाज भी इतना ही चिढ़ाने वाला था। मैं सर फाड़ दूंगी आपका, बता रही हूँ। अमसाल का दिल सच में यही करने के लिए बेताब हो रहा था। क्यों गुस्सा कर रही हो इतना? इत्तेहाद अमसाल का लाल दुपट्टा पकड़े उसे बहुत मोहब्बत से देख रहा था। क्योंकि आज आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अमसाल नफरत भरी नजरों से इत्तेहाज को देख रही थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, जिंदगी सवार दूंगा तुम्हारी। इत्तेहाज ने अमसाल को देखते हुए कहा था। मुझे नहीं संवारनी आपके साथ जिंदगी। निकाह का शौक पूरा हो गया है ना आपका, अब तलाक दे मुझे। अमसाल को इस वक्त अंदाजा न था कि वो क्या बोल रही है। वो तो अब तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी, समझी? आज के बाद ऐसे अल्फाज अगर अपनी जबान पे लाई तो गुद्दे से जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। इत्तेहाज गुस्से में उठ के अमसाल की तरफ आया था और उसे अपने हाथों में जकड़ लिया था। कोई नहीं कह सकता था कि ये थोड़ी देर पहले वाला इत्तेहाज है। मुझे तलाक चाहिए, अभी दे। अमसाल भी इत्तेहाज की तरह खासी ढीठ थी। नहीं दे रहा, क्या कर लोगी? इत्तेहाज ने खुद पे काबू रखते हुए कहा था। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में कुछ कर दे। मैं अपनी जान ले लूंगी। अमसाल ने खुद को इत्तेहाज की गिरफ्त से आजाद किया था और पास पड़ी छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख दी थी। ओह रियली? मैं यही हूँ, ट्राई करो तुम, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इत्तेहाज को डर तो था, क्योंकि इस वक्त अमसाल अपने हवासों में नहीं थी। लेकिन इत्तेहाज ने इजहार ना किया था और सख्ती से अपनी बात कही थी, वही चट्टानों की मजबूती जैसे लहजे में। मैं सच में अपनी नस काट लूंगी। इत्तेहाज इस वक्त जुनून की कैफियत में थी। अरे अंकल आप आए देखें अपनी बेटी की हरकतें। इत्तेहाज ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा था। जैसे अमसाल ने उस तरफ देखा था, इत्तेहाज ने आगे बढ़कर अमसाल के हाथ से छुरी लेकर दूर फेंकी थी और उसे एक बार फिर अपने हाथों में कैद किया था। छोड़े मुझे। अमसाल इत्तेहाज की बाहों में खुद को छुड़ाने के लिए मचल रही थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत न थी कि इत्तेहाज को एक आंच भी हिला पाती। चुप, बिल्कुल एक आवाज ना निकले अब तुम्हारी। इत्तेहाज की बस हो गई थी और वो धाड़ा था। इत्तेहाज की धाड़ से अमसाल की जबान को ब्रेक लगाता और मुजाहमत करता वजूद साकित हुआ था। अमसाल एकदम से सफेद पड़ने लगी थी। अगर मेरे पीछे ऐसी कोई भी बेवकूफाना हरकत की तुमने, तो याद रखना कि मैं किसके साथ क्या करूंगा।
इब्तिहाज अब भी गुस्से में बोल रहा था, लेकिन फिर अमसाल का साकित वजूद ठंडा पड़ा था और अपनी गिरफ्त को नर्म कर दिया था। यही धमकियां आपकी। अमसाल अपनी बात भी मुकम्मल न कर सकी थी और रो दी थी। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था, कुछ रोने की वजह से और कुछ इब्तिहाज के डर सा। उफ, फिर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा ना, कुछ नहीं करूंगा भाई, अब बिल्कुल चुप। इब्तिहाज ने पहले अपना माथा पीटा था, फिर अमसाल को अपने सीने से लगाकर तहफ्फुज़ फराहम किया था। इब्तिहाज अमसाल के सामने कमजोर पड़ जाता था, चाह के भी उस पे ज्यादा सख्ती नहीं कर पाता था। अमसाल भी सहारा पाते ही उस शख्स के सीने पे सर रखे दारो कतार रो रही थी, जो उसके दुखों की वजह थी। क्यों इस तरह रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो यार, रिलैक्स हो जाओ। मैं कोई जिंदगी तंग नहीं कर रहा हूँ तुम पे। इत्तेहाद से मजीद अमसाल का रोना बर्दाश्त ना हुआ था। जिंदगी मुश्किल कर दी है आपने मेरी, बल्कि मुझे जीते जी मार दिया है। अमसाल ने खुद को अलग किया था इत्तेहाद से। इत्तेहाद ने फौरन अमसाल का हाथ पकड़ा था और उसे बेड पर बिठाया था और खुद घुटनों के बल अमसाल के सामने बैठा था। वो दिन जरूर आएगा जब तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लोगी। तुम्हें भी मुझसे ऐसी ही मोहब्बत होगी और तुम खुद इस बात का इकरार करोगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इब्तिहाज अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के सामने नीचे झुका बैठा था और वो लड़की उसकी महरम थी, जिससे उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं नफरत करती हूँ आपसे, समझे आप? शदीद नफरत। अमसाल फौरन बोली थी, चलो मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारी इस नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा, और अगर मैं नाकाम रहा तो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खुद को दूर कर दूंगा। इब्तिहाज को अपनी मोहब्बत और अपने रब पे ईमान था। मुझे यकीन है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप मेरे जिस्म तक तो रसाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल तक कभी नहीं। अमसाल को भी अपने ऊपर यकीन था। तुम मेरी हो गई हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जिस्म की मुझे कोई भूख नहीं है। अमसाल, इत्तेहाद, जहांगीर, हाँ, तुम्हारे दिल तक रसाई जरूर हासिल करूंगा। आखिरी बात बस यही कहूंगा कि इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। इब्तिहाज अपनी बात कहकर खड़ा हो गया था जाने के लिए। अल्लाह करे तुम मर जाओ मीर इब्तिहाज जहांगीर। अमसाल ने नफरत भरे लहजे में अलविदाई कलमात कहे थे। क्यों खुद को बद्दुआएं दे रही हो, बेवा हो जाओगी। इब्तिहाज ने अमसाल का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया था और मुस्कुरा कर बोला था, मैं वो पहली बेवा होंगी जिसे अपने बेवा होने का कोई दुख नहीं होगा। अमसाल के लहजे में कोई फर्क नहीं आया था। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अगर तुम्हारी दुआ कबूल ना हुई तो आऊंगा अगले हफ्ते बारात लेकर। इब्तिहाज ने अमसाल के माथे पे अपनी मोहब्बत की पहली मोहर लगाई थी और कुछ देर अपने लब ऐसे ही रहने दिए थे। इब्तिहाज ने आखिरी बार अमसाल को नजर भर के देखा था और जिससे आया था बेजी चला गया था। अमसाल इस बात से बेखबर थी कि उसने अपनी आखिरी बात से इब्तिहाज को कितनी तकलीफ दी थी। इब्तिहाज अपनी मनकूहा का दिया हुआ दर्द चेहरे पे मुस्कुराहट लिए सह गया था, लेकिन बहुत कुछ था जो इब्तिहाज के अंदर टूटा था। अब देखना ये था किसका यकीन ज्यादा पुख्ता था, या फिर अमसाल की दुआ कबूल होने वाली थी। निकाह हुए चंद दिन गुजर गए थे। अमसाल और इत्तेहाज की शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे और आज मेहंदी की तकरीब थी। शहर के नामवर 5 स्टार होटल में ये तकरीब रखी गई थी। मेहमान आना शुरू हो गए थे और दोनों तरफ से मेजबान भी इस्तकबालिया पे मौजूद थे। चूंकि ये तकरीब मुश्तरका रखी गई थी, ब्राइडल रूम में अमसाल तैयार बैठी थी। थोड़ी ही देर में उसे बाहर किसी मुजस्मे की तरह बैठना था। इब्तिहाज भी पहुंच चुका था। तमाम मेहमानों के आने के बाद खूब धूमधाम, ढोल धमाके और शोरगुल के साथ इब्तिहाज को स्टेज पे लाया गया था। इब्तिहाज के फौरन बाद ही अमसाल को लाया गया था। उसका इस्तकबाल भी इब्तिहाज से कम न था। मुख्तलिफ रंग के फूलों से सजी गाड़ी में अमसाल बैठी हुई थी, जिसे उसका भाई और दोस्त धक्का लगा रहे थे। अमसाल के चेहरे पर सबकी खुशी देखकर हल्की मुस्कुराहट थी। अमसाल ने पीले और हरे रंग का ढोल फ्रॉक पहन रखा था, जो कि घुटनों से थोड़ा ऊपर था, साथ ही साथ हम रंग भरारा था। दोनों पे बहुत खूबसूरत काम किया गया था। लंबे बालों को खजूर चोटी में कैद किया गया था और साथ ही बहुत खूबसूरत अंदाज में मोती के फूलों से बनी लड़ियां बालों और दुपट्टे के साथ सेट की गई थी। फूलों से बना जेवर पहने खुशबुओं में नहाई अमसाल इब्तिहाज का दिल धड़का रही थी। इब्तिहाज खुद अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बैठा हुआ था, न जाने वहां मौजूद कितनी लड़कियों के दिल धड़का रहा था। इब्तिहाज अमसाल को देखते ही उसमें खो गया था और वारदगी से उसे तक रहा था। मेराज ने उसे कोहनी मार कर होश दिलाया था। तकरीब का आगाज हो चुका था और सब एक एक करके मेहंदी की रस्म अदा करने आ रहे थे। रस्म खत्म होते ही डांस का दौर चला था। इत्तेहाज के तमाम दोस्त और कजन अपने यार की शादी में खूब नाच रहे थे। आखिर को सबने इतने दिन पहले से तैयारी जो शुरू कर दी थी।
अमसाल भी फिल वक्त सबकी मस्तियां देखकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। आखिर में इब्तिहाज और अमसाल को भी डांस फ्लोर पर लाया गया था। उनसे भी डांस की फरमाइश की जा रही थी। ये सुनकर अमसाल ने मिन्नत भरी नजरों से इब्तिहाज को देखा था, जिसका मतलब था कि वो डांस नहीं कर सकती। इब्तिहाज ने अमसाल की नजरों का मफहूम समझकर सबको बहुत महारत से टाल दिया था। सब दोनों को बीच में खड़ा करके एक बड़ा सा गोल दायरा बनाकर घूम रहे थे, साथ में दोनों को खूब तंग कर रहे थे। अमसाल मुस्कुरा कर सबके साथ ताली बजा रही थी और इब्तिहाज उसकी नजरों का मरकज। वो मुस्कुराती हुई रगे जहाँ थी। काफी हल्ले गुल्ले के बाद एक कामयाब तकरीब अपने अख्तिताम को पहुंची थी। अमसाल भी इस तकरीब से खूब लुत्फानंदोज हुई थी। उसने सोच लिया था कि अब वो रोएगी नहीं बल्कि रुलाएगी, क्योंकि रोने धोने का कोई फायदा नहीं था। तो दोस्तों, इश्क और जुनून की ये दास्तान आपको कैसी लग रही है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे।